Morgan Freeman once said, "Challenge yourself, it's the only path which leads to growth." And my guest, in her more than 2-decade long career, has taken multiple challenges as an artist. She's emerged victorious every single time. Welcome to Baatein Ankahi with Divya Datta. Divya, welcome to Pinkvilla. Thank you, Nash. There is a small surprise for you. Okay. There is someone who sent an audio note for you. Okay. And the person has expressed so much about you, so I'm going to play it for you. Please. How lovely. Hi Divya, this end is Tanishtha. I was trying to remember when did we actually meet and I don't seem to remember. I just feel that I've always known you. And that's all. There was not that one event where we met and then just became friends. I think it just over the years, over, our chais and coffees and our meetings and shabanas for various occasions, we just bonded. And to come to think of it, we only shot one film together, Jhalki. And yet I feel that, oh my God, like we've shared so much, be it our 2 a.m. impromptu chais where we discuss everything from love, life, nature, work, films. I cherish everything and all those moments with you. And maybe I've never said this on your face, but Divya, you have one of the most infectious and warmest smiles. Oh. You're one of the most positive and warmest people that I know. And I love you, and you're one of those friends. I know deep down in my heart that sometimes even when we don't speak for months together, I can still just call you up at 4 a.m. in the morning and you'll be there. I want to meet you very soon. I think we haven't met for a long time. Divya, I love you and I'm here always there for you. And I know that you feel the same about me. Bye, big hug. Oh, that is so sweet. That is amazing, right? That's beautiful. It just makes you feel so rich with people who love you and who mean a lot to you. Really. Yeah. I must tell you, I messaged her late evening and she was quick to respond saying, "Oh yeah, I'm going to send it quickly." And she did. काम और शोहरत और प्यार बहुत कमाए दिव्या, पर दोस्त भी बहुत कमाए. मेरे ख्याल से, और ये दो तरफा चीज़ होती है. हम लोग क्या करते हैं कि हर फिल्म करते हैं, वो फिल्म हमारी फैमिली बन जाती है, उन लोगों से आप रोज़ मिलते हैं, उस साल की पार्टियों में वो आपका एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन अगली पार्टी में फिर दूसरे लोग आते हैं. लेकिन मेरी शायद एक आदत रही है कि हर फिल्म में शायद आप किसी से थोड़ा सा बाकियों से ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हैं. सो आई जस्ट ऑलवेज प्रोबेबली चेरिश दैट फ्रेंडशिप एंड मेक एन एफर्ट दैट this person I really like and I would like to have him or her as a friend for life. And I think I'm glad I've picked these beautiful gems in my life and they all are my 2M friends. और वो जो हम कहते थे कि दो एक्ट्रेसेस दोस्त नहीं हो सकती, वो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे, बिकॉज मेरी तो कितनी दोस्त हैं जो सिर्फ एक्ट्रेसेस हैं. जी. आपका ये गर्ल गैंग है ना, जैसे शबाना जी ने, there's संध्या ने, there's you, there's Tanishtha. जी. How did this bond actually start? Because you all have all worked together, but separately. Yes. Not all of us have. Yeah, actually I've worked with most of them. Yeah. I didn't realize that. But that's शबाना जी. शबाना जी के घर पे एक हमारी महफिल होती है जहाँ पर हम लोग, मतलब हम मिलते थे दिवाली पे या होली पे, तो वहाँ एक गर्ल गैंग, ऐसा सोचा नहीं था कि हम गर्ल गैंग बनेंगे, लेकिन वो जो मस्ती एक साथ होती है, एंड आई थिंक दिस सो मच व्हेन टू वुमेन मीट एंड टॉक, बहुत उसमें एक भाईचारा होता है जिसे हम बहन चारा भी कह सकते हैं. वो होता है, एक बॉन्डिंग होती है. एंड व्हेन यू ओपन अप, हम लोग कई बार होते हैं बहुत इनहिबिटेड हो जाते हैं कि मैं इतना ही बोलूँगी या इतना ही, बट विद विमेन आई थिंक सबकी प्रॉब्लम्स, सबकी ज़िंदगियाँ कहीं ना कहीं मिलती हैं. तो वो अगर एक पॉइंट ट्रिगर हो गया, देन यू नो कि मेरी इससे बहुत बनती है, इससे बहुत बनती है. एंड वी ऑल मेट एट शबाना जीज़, एंड शबाना जी इज़ लवली, शी लव्स टू सेलिब्रेट लाइफ. तो वो मुझे याद है, बाकी तो हम हमेशा दिवाली पे या कहीं ना कहीं उनके घर पे मिलते हैं, होली पे, लेकिन वो कुछ हमारी चाय पार्टीज़ हुआ करती हैं जहाँ पर वो सिर्फ हमारा गर्ल गैंग आता है. हाँ.
और उसमें कोई काम की बात नहीं होती है। हाँ। उसमें सिर्फ मस्ती मजाक, जस्ट सेलिब्रेटिंग लाइफ, जस्ट नॉट टेकिंग ईच अदर टू सीरियसली। तो वो एक बड़ी खूबसूरत बॉन्डिंग बनी। एंड आई रियलाइज कि जितनी लड़कियां हैं यहाँ, जितनी एक्ट्रेसेस हैं, आई रियली लव देम ऑल। और कुछ के साथ काम किया था तब कुछ नहीं हुआ था। हाँ. अब जाकर शायद मे बी आई हैव चेंज्ड, मे बी they have changed. I don't know what it is, but we've really connected on many different levels. Yeah. गर्ल गैंग होती है और जावेद साहब होते हैं वहाँ पे। जावेद साहब तो मतलब he's amazing. उनके साथ अगर आप बैठें तो वक्त कहाँ गुजरा नहीं पता चलता। I don't think किसी के पास लफ्ज़ों का जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो उनसे बेहतर है। वो मतलब he is so witty, Yeah. so intelligent, so well informed, so what do you say, महफिल की जान होते हैं वो। जी बिल्कुल। चाय पसंद करती हैं आप? बिल्कुल करती हूँ। सर्व कर दूं आपको? मतलब कुल्हड़ में देंगे तो जरूर कर जी दीजिए। बिल्कुल। कुल्हड़ की चाय का मजा ही और है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छुट्टियों की याद दिला देता है, थोड़ा छोटे शहरों की याद दिला देता है। और जब आप छोटे शहर से आए तो वापस बचपन में या आपके नए इनिशियल डेज पे आपको ले जाता है। बिल्कुल। क्या ये चाय आपको लुधियाना ले जा रही है, उस दिन की याद दिला रही है? ये उन सब ढाबों की याद दिला रही है जहाँ पर मैं रुक कर हमेशा कुछ ना कुछ खाती पीती हूँ। और ये तो होना ही है। मतलब आई रिमेंबर हमारी एक स्कूल रियूनियन थी, तो मेरा एक दोस्त US से आया था, तो धुंध के दिन थे, उसने कहा मेरी फ़्लाइट ना मिस हो जाए। सो हम चंडीगढ़ के रास्ते में थे लुधियाना से। ऐसे देख मैं तेरे साथ हूँ बट मुझे चाय और पराठा खाना है। तो ही सेइंग बट वी मिस द फ्लाइट। आई सेड आई डोंट केयर, स्टॉप मी। और फिर जब हमने वो पराठे पे मक्खन डाला और धुंध देखी कि फ़्लाइट तो लेट ही होने वाली है, वो जो चाय का मज़ा है बाहर ठंड में। सो दिस ऑल रिमाइंड्स मी ऑफ दोज ब्यूटिफुल डेज एंड द बेसिक्स। आई थिंक हम धीरे धीरे बेसिक्स पे जा रहे हैं जी। और दिल वहीं लगे हुए हैं, बेसिक्स बाकी तो काम करते हैं जी। तो थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू लाइक आई सेड, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम, इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस। जब लड़कियां एक्टर्स बनना चाहती हैं तब वो कहती हैं मैं हेमा मालिनी जी को देख के डांस करती थी, मैं श्रीदेवी को देख के आईने के सामने डांस करती थी। आपने कहीं कहा कि आप अमित जी के गानों पे डांस करते थे, स्पेशली खई के पान बनारस वाला। ये फैसिनेशन कब शुरू हुआ और क्या आपके पेरेंट्स इससे ओके थे, कंसिडरिंग यू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स? सेकेंडली स्मॉल टाउन में शायद लोग चाहते हैं कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बन जाए, पर एक्टर बनना और ये प्रोत्साहन मिलता था आपको? नहीं, आज से 25 साल पहले तो ऐसा बिल्कुल प्रोत्साहन देने वाला एटमॉस्फेयर नहीं था और उसके लिए मैं किसी को शायद ब्लेम भी नहीं करती। हमारे आई थिंक टाइम्स अब बदल गए हैं। पहले ऑफ कोर्स एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बैकग्राउंड होता था कि बच्चा है मुंबई जाएगा। हमारे ये प्रोफेशंस ऐसे नहीं है कि जहाँ पर आपको पता है कि आपको इतनी ही सैलरी मिलेगी, बड़ी परफेक्ट जॉब है, बड़ी सिक्योर जॉब है, ऐसा नहीं है। आपको मालूम ही नहीं कि आपका कल कैसा है। सो वहाँ पर एक अपने बच्चे को भेज देना, वो भी एक ऐसे पंजाबी बैकग्राउंड से जहाँ पर जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो या आपके लिए कोई ना कोई बड़ा खड़ा है। एंड आई थिंक व्हेन यू लिव इन अ स्मॉलर एरिया दिस ऑलवेज एवरीवन, अगर मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तो कोई अंकल आंटी होंगे या कोई नेबर होंगे जो कहेंगे हाँ जी बेटा की चाहिए है, ऑलवेज लुकिंग ओवर। सो एंड कमिंग टू एन इंडस्ट्री विच आई थिंक यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल फॉर योर सेल्फ इज़न्ट वेरी ईजी। तो तब ये लाइन बहुत ऐसे वो थी कि नहीं भाई एक्टर नहीं बनेंगे। तो मैं हेड गर्ल थी अपने स्कूल की और एलोक्यूशन की क्लास थी और उसमें पूछा गया था कि किसको क्या बनना है। तो वही जो आपने प्रोफेशंस बोले, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, टीचर या फिर बिजनेस, पापा मम्मी का। और मैंने खड़े होके बोला मुझे, बिकॉज ऑलवेज आई थॉट कि मुझे बच्चन साहब की जब से मैंने फिल्में देखी थी, आई वॉज वेरी इनामर्ड बाय हिम। आई यूज टू टेयर माई मदर साड़ीज, दुपट्टाज एंड से कि इनको बांध दो ऐसे, वो जैसे वो बांधते थे यहाँ साइड पर। और पान तो अलाउड नहीं था 4-5 साल के बच्चे को, तो वो मम्मी की लिपस्टिक की मैं बिल्कुल मतलब कोई खैरियत ही नहीं थी उसकी, तो वो लगा के ऐसा शो करती थी, लाल हो गया मुँह। एंड आई वुड इन्वाइट ऑल माई नेबरहुड चिल्ड्रन और उनके सामने मैं परफॉर्म करती थी और उनको कहती थी तालियां बजाओ, आई एम बच्चन। तो वो आई थिंक एक छोटे जहन में वो बैठ गया कि ये जहाँ बिलोंग करते हैं ना, आई लव दैट वर्ल्ड। तो जब मैंने स्कूल में ये बोल दिया कि आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, तो सब एकदम जैसे उसे क्या कहते हैं
साइलेंस ऐसी थी जैसे इट वाज लाइक अ किलिंग साइलेंस कि इसने क्या बोला, एंड इट वाज अ कॉन्वेंट स्कूल। तो मुझे प्रिंसिपल के पास लेके गए एंड आई वाज रेप्रिमेंडेड, आई वाज टोल्ड कि भाई यू आर नॉट सपोज्ड टू set a bad example, you're the head girl of the school. उस वक्त everyone was against it. सबने मम्मी से कहा कि नाता तोड़ देंगे ऐसे बच्चे को भेजा तो, लेकिन my mother said कि अगर मेरा बच्चा एक्टर बनना चाहता है तो कल को वो ये नहीं कहे कि she wanted to do something in her life and I didn't allow her. She shouldn't have that regret in life. And I can't tell you, Avinash, how happy I am that today I look back and I can't thank her enough for letting me do what I really wanted to do and earning out of something that I'm sincerely passionate about. पहली बार जब आप अपने पेरेंट्स के पास गई और उनको बोला मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, क्या रिएक्शन था? डैडी तो थे नहीं. I lost my dad when I was 7 and so मम्मी जब मुझे वो इन्फॉर्मेशन आई कि आई बीन सिलेक्टेड तो फोटोज़ मेरे भाई ने खींची थी, तो हम दोनों ऐसे होता है ना कि एकदम क्रिमिनल्स की तरह जाके खड़े हो गए, अब तो बताना पड़ेगा. और एग्ज़ाम्स थे मेरे, तो हम दोनों ने हाथ पकड़ा ऐसे यूनिटी में कि जो होगा देखा जाएगा. एंड मम्मी की क्लिनिक में घुसे और मम्मा सेड हाँ बेटा हो गई पढ़ाई. आई सेड मम्मा आई वांटेड टू टेल यू समथिंग, आई हैव बीन सिलेक्टेड. शी सेड वेयर? आई सेड आई हैव टू गो टू बॉम्बे फॉर दिस टैलेंट हंट. शी जस्ट लुक्ड एट मी एंड पिन ड्रॉप साइलेंस. अगर मतलब खुल जाती ज़मीन तो हम दोनों घुस जाते उसके अंदर, ऐसी पियर्सिंग सी लुक थी वो. और शी सेड आर यू श्योर? उस वक्त अविनाश मुझे लगा कि आई हैव नेवर बीन मोर श्योर दैन दिस. आई रियली वांट टू एक्ट. एंड मेरा चेहरा एकदम ऐसे ग्लो किया एंड मेरी आंखें चमकी एंड आई सेड मम्मा दिस नथिंग मोर आई वांट टू डू एंड आई वांट टू डू दिस. शायद मैंने जिस तरह से कहा या कुछ भी, शी सेड इफ़ यू आर दैट श्योर ठीक है आई एम विद यू, बट रिमेंबर एक तो तुम अपनी पढ़ाई ख़त्म करोगी, दूसरा कभी भी तुम्हें लगे कि नहीं हो रहा है यू विल कम बैक, आई एम ऑलवेज देयर. तो मुझे लगा कि यार एक पेरेंट इतना कुछ अनकंडीशनल सा, नॉन जजमेंटल सा पेरेंट हु बिलीव्स एंड ट्रस्ट्स एंड इज़ विद यू, आई थिंक एक बच्चे के लिए बहुत मायने रखता है. और फिर जो मैंने पढ़ाई शुरू की, आई टॉप्ड माई एग्ज़ाम्स. यहाँ पे मुंबई में आई, यहाँ पर भी इतनी लंबी लंबी सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी अविनाश. आई रिमेंबर सेंटोर में हमारा वो चल रहा था ऑडिशंस. सोनाली बेंद्रे वाज वन ऑफ द गर्ल्स दैट आई सॉ एंड आई वाज लाइक इतने सुंदर लोग होते हैं क्या? मतलब फिर देन आई जस्ट लुक्ड एट माई सेल्फ. आई वाज वेयरिंग सलवार कमीज़ और वो तो मैंने अपनी मम्मी को देखा. आई थिंक वी बोथ न्यू व्हाट वी आर थिंकिंग कि आई एम प्रिटी सिंपल एंड प्रिटी गर्ल नेक्स्ट डोर और छोटी एंड गॉर्जियस. तो मुझे लगा यार ये परियों में मैं कहाँ आ गई, इतनी सुंदर ग्लैमरस लड़कियाँ. बट माई मदर हैड रिटन अ पीस फॉर मी जिसकी वजह से मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड पंजाब यूनिवर्सिटी में मिला था. तो वही मोनो एक्ट मैंने, मेरे सामने बैठे थे यश चोपड़ा, मेरे सामने बैठे थे शेखर कपूर, सूरज बरजात्या, सुभाष घाई. ये 4 दिग्गज हमारे सामने बैठे हैं. इनकी फिल्में हम देख रहे हैं. इनकी फिल्में देखकर मैं ख्वाब देखती हूँ कि मुझे फिल्मों में होना है. और यश चोपड़ा तो मैं सोचती हूँ कि लॉन्च्ड बाय यश चोपड़ा. हियर ही इज सिटिंग राइट हियर. टांगे मेरी कांप रही हैं. ऐसे दिव्या बाहर लंबी सुंदर लड़कियाँ बैठी हैं, यहाँ पे तू अपनी एक्टिंग करके अच्छे से चली जा. नहीं दिस आइदर दिस और यू बैक वेयर यू आर. एंड देन आई सॉ माय मदर सिटिंग इन द कॉर्नर जस्ट सिटिंग एंड डूइंग हर प्रेयर्स लाइक दिस. तो टांगें काँप रही थी, पर जो मैं कर सकी वो आई डिड एंड आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब बिकॉज आई वॉज द एडिटर्स चॉइस फॉर दिस थिंग. एंड फिर एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई थी कि हम जब ये हमने किसी को नहीं बताया था. मेरे अंकल डायरेक्टर थे फिल्मों में, दीपक बैरी जी. तो हमने उनको भी नहीं बताया कि कल को अगर ना सिलेक्ट हुए या हुए तो ही माइट नॉट बी यू नो, ही ऑल्सो मस्ट बी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मी. सो अम्बाला में एक शादी थी और मैं शायद 18 साल की थी. तो गए वहाँ पर, मैंने वही बच्चन साहब का डांस किया और शाम को एक बैठक, वहाँ पे एक अंकल बैठे हैं और मेरी नानी बैठी हैं और मेरी माँ को बुलाया गया और मुझे बुलाया गया. एंड अंकल सेज इसके लिए रिश्ता आया है, डॉक्टर है USA का, सो लेट्स से यस. सो आई वाज लाइक शख्स, मैं तो वहाँ जाना चाह रही हूँ, ये क्या हो गया है. मतलब फॉर मी आई थिंक पंजाबियों में होता है कि हाँ बच्ची सेट हो गई, अमेरिका चली गई, लड़का जो है डॉक्टर है, बस और क्या चाहिए. तो वो करेक्ट मोमेंट था फॉर मी टू टेक अ चांस आइदर हियर और देयर.
And I just looked at my mother and she didn't even look at me. I said, देख ले यार माँ, एक बार देख ले कि मैं मना कर रही हूँ. She didn't look at me. And then she just told my uncle, she said, no, she has other plans. Thank you, भाई साहब. I was so grateful. और उस दिन जो मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ के उस शादी में डांस किया, I said, F you guys, I am dancing. And I think that was a camaraderie that I had with my mother, who was not just a mother, who I think was my best friend. Yeah. Yeah. Sure. At that audition, you remember what feedback did these four legendary directors give you? Did they say anything? You know, they were all poker faced, and I was like, कुछ एक smile दे दो, कुछ पता तो चले कि क्या हुआ. पसीना पसीना हो रही थी मैं. लेकिन जब select हो गए, of course, then I think that was the protocol that you're not supposed to really tell. All they did was thumbs up to me. And बहुत सालों के बाद मेरे ख्याल से मैंने सबके 2-3 के साथ तो काम किया ही है. तो यश जी के साथ जो मुझे एक था कि आई डोंट नो इफ यू रेड माय बुक्स द स्टार्स इन माय स्काई, मैं आपको दूंगी. उसमें एक चैप्टर है यश जी पर. तो वो ये कि मैं हमेशा कहती थी कि मुझे यश जी लॉन्च करें तो कितना अच्छा होगा. एंड यू नो शिफॉन साड़ीज एंड एल्प्स एंड शाहरुख और whoever, you know, like that. तो ऐसा हुआ नहीं. आई तो मुझे मल्टी स्टारर फिल्में मिल गई सब. आई वाज नोन एज वो जो मनीषा कोइराला जैसी नई लड़की दिखती है ना, उसको बुला लो. तो there was this film happening, Agni Sakshi. I was in that multi-starrer, then another multi-star. I said, what am I doing? I'm getting these 2 songs. I'm getting these 2-3 scenes where I'm saying, मुझे बचाओ. This is what I was doing. I was like, but I am a good actor. मैं ये क्या कर रही हूँ? Much that I really enjoyed doing those rain songs. वो मेरे जितने शौक थे सब पूरे हो रहे थे ऐसे देखने के fantasies. बट यश चोपड़ा तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आए कि अब क्या करूं. एंड फिर आई थिंक जिंदगी लाइफ टेक्स ओवर. एंड देन आई हैड स्टार्टेड शूटिंग फॉर रैंडम फिल्म्स. एंड वन आई वाज शूटिंग इन लंडन एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम यश राज एंड दे टोल्ड मी यश जी वांट्स टू मीट यू. And so I was like, अरे चलो launch is happening. थोड़ा लेट हो गया बट हो गया. और फिर जब मैं आई वापस तो आदि एंड यश जी both were sitting together. So I said, यार इससे अच्छा क्या हो सकता है कि I'm sitting with both the legends. And so they narrated the story and then Yash uncle says, तो इसमें बच्चन साहब हैं. I said, lovely. And then हेमा जी हैं, शाहरुख हैं. I said, चलो मेरा लॉन्च अच्छा है. मेरा लॉन्च बहुत अच्छा. He said, प्रीति हैं, रानी हैं. I'm like, wait a minute, what am I doing then? He said, the film is called Veer Zara. Zara is Preeti. The lawyer is Rani. तो समय मैं क्या कर रही हूँ? इससे तुम ज़ारा की फ्रेंड बनोगी. आई सेड यार अगर यशराज में मैं दोस्त बन गई, आई एम स्टैम्प्ड फॉर लाइफ. एंड आई थिंक आदि बीइंग आदि, ही रियली रेड माई थॉट्स. ही सेड लुक, इफ इट वाज अ नॉर्मल रोल वी वुडंट हैव कॉल्ड यू. ट्रस्ट मी, यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर वीर ज़ारा. द वे ही सेड इट. एंड आई वेंट होम और मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारा कोई गॉडफादर है? मैंने कहा नहीं. शी सेड मैं तो प्रोड्यूस करने वाली नहीं हूँ तुम्हारे लिए कोई फिल्म. तो वो वाले जो रोल्स तुम्हें लगता है कि बहुत खूबसूरत हैं, येट वो शायद लीड रोल्स नहीं हैं, पर उन्हें कर और इतना अच्छा कर कि तेरे लिए बाद में रोल्स लिखे जाएं. तो आई स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट शी मेंट बट आई ओबेड एंड आई डिड वीर ज़ारा. और जब प्रीमियर हुआ उस फिल्म का और मैं इंटरवल में निकली आंखें बंद करके कि आई एम द वर्ल्ड्स बेस्ट फ्रेंड नाउ फॉर द इंडस्ट्री. मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था. बाहर आई फॉर द फर्स्ट टाइम. I was surrounded by people asking autographs, asking याश अंकल ये लड़की कौन है, ये पाकिस्तान से आई है, ये कौन है. तो I suddenly overnight became a like the talked about girl in town. And I just looked up in the sky, said in the most unassuming ways, I've actually been relaunched by a Yash Raj film. So I just felt yeah, life is amazing. But उसके अपने तरीके हैं, आपकी चीज़ें, आपके ख्वाब पूरे करने के. बिल्कुल. एंड आदि वाज राइट. शब्बो इज स्टिल रिमेंबर्ड वेरी फॉन्डली आफ्टर सो मेनी इयर्स आल्सो. दिव्या, पर जो आपको इस टाइम फील आई कि लोगों ने आपको सराउंड किया और एक सडन अटेंशन मिला, बट वो अटेंशन आना भी 10 साल लगा. 1994 में आपने अपना डेब्यू किया था और 2004 में वीर ज़ारा रिलीज हुई थी. डू यू फील योर स्टारडम केम मच लेटर? आई थिंक आई कम विद अ वेरी अनकन्वेंशनल जर्नी इन माई लाइफ एंड आई लव इट. कुछ साल पहले शायद नहीं रियलाइज़ किया, बट आई रियलाइज इट नाउ दैट जो चीज़ें मैं तब करना चाहती थी
कि मुझे आई वांट टू रोमांस माय हीरोज, आई वांट टू प्ले द लीड, आई वांट टू डू दिस, आई एम डूइंग ऑल दैट नाउ. सो इट फील्स शायद किसी ने मेरी कहानी बिल्कुल अलग लिखी थी एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. कंप्लेंट्स नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो नहीं होता तो फिर ये नहीं होता, और वो चीज़ें आपको तब रियलाइज़ नहीं होती. आई हैव हैड माई शेयर ऑफ सैड मोमेंट्स ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, ऑफ फीलिंग कि वो लड़की को हीरोइन लिया, मुझे क्यों नहीं लिया. वो सब हुआ है. लेकिन आई थिंक मेरा बैकग्राउंड इतना वो था, मेरी माँ ने हमेशा मुझे ये नहीं फील होने दिया कि दिस इज़ द बी ऑल एंड एंड ऑल. तो जब मैं कभी रोते हुए आती थी तो शी वुड से क्या ज़िंदगी ख़त्म हो गई? ऐसे नहीं, एक्चुअली ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हुई है. तो शी सेड हाँ तो नहीं हुआ, एक आदमी ने रिजेक्ट किया, उसका लॉस है ना बच्चे, उसको नहीं पता तो कितना अच्छा एक्टर है. फिर और आएगा. एंड आई हैव वर्कड विद दोज वेरी सेम पीपल इन मच बेटर रोल्स नाउ, क्योंकि अब जो इमेज है मेरी और जो मैं बनाना चाहती थी जिसमें इमेज नहीं है, that feels really nice. Yeah. It's such liberating for an actor to not have an image, right? या तो पहले लोगों को, जब मैं आई थी, लोगों को we were not as liberated as we are after the OTT has come in. बट पहले लोगों को लगता था इसको कौन से उसमें डालें, ये यश चोपड़ा के साथ भी काम करती है, ऋतुपर्णा घोष के साथ भी काम करती है, लेकिन ये शबाना जी और स्मिता पाटिल की तरह लीड नहीं है, ये इसको कहाँ डालें. तो आई वॉज अ वेरी क्यूरियस केस for everyone. So then they gave me this horrendous title, supporting actor, which I hated. Because I feel I'm an actor. मैं चाहे नेगेटिव रोल करूँ, कॉमेडी करूँ, मैं हीरो से रोमांस करूँ, उसकी बहन बनूँ, भाभी बनूँ, मैं अलग अलग मुख्तलिफ रोल्स कर रही हूँ, और वो मेरी चॉइस है करने का. So I call me and if you see most of the actors are called actors. अगर वो हर तरह के रोल करते हैं. अब जाके 4-5 साल से चीज़ें बदली हैं, और that tag has been removed very nicely, thank God. And I feel happy about it. Amazing. जैसे आपने कहा आपके अंकल मामा प्रोड्यूसर थे जब आप परस्यू कर रही थी एक्टिंग, क्यों नहीं मदद लेना चाहती थी आप उनकी? He was very well established at that point in time. See, I'll be very honest. सब अब मेरे मामा हैं, very protective. कि हमारी इनफैक्ट ये मैंने सब अपने चैप्टर्स में लिखा है किताब में. धर्म जी कम्स फ्रॉम द सेम टाउन एज मी. साहनेवाल नाम की एक जगह है जो लुधियाना के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे है. तो मेरी माँ वहाँ की सिविल सर्जन थी, और धर्म जी वहाँ बिलोंग करते थे. अब भी अगर आप उनका पढ़ें बायोग्राफी से साहनेवाल, तो मैं किस्सा सुना करती थी कि धर्म जी आए और रातों रात आए, अपना घर देखा, कुछ वो पेड़ के नीचे जहाँ बचपन था उनका, वहाँ बैठे और रातों रात चले गए. आई यूज्ड टू वंडर कि ये ऐसा क्यों करते हैं रातों रात, ये सबसे मिलके क्यों नहीं गए. अब मैं जब जाती हूँ घर वापस, मतलब घर तो खैर अब नहीं है वहाँ पर, लेकिन आई वेंट ऑन द सेम गलियाराज ऑफ माई मदर्स हॉस्पिटल जहाँ हमारा बचपन बीता, वो घर. और मुझे याद है कोई ऐसे वॉचमैन या कोई थे एम्प्लॉय थे, वो आए थे, दिव्या जी, एंड आई जस्ट सेड सत श्री अकाल जी, मुझे 5 मिनट देंगे जस्ट टू माई सेल्फ, वेयर आई डोंट वॉन्ट टू सी एनी वन, आई जस्ट वॉन्ट टू रेमिनाइज द चाइल्डहुड. एंड आई सैट एंड आई क्राइड. I don't know what that crying was for, but it felt beautiful to remember your childhood, where you have walked everything and just be and feel that वो ज़मीन को हाथ लगाना. And I could that moment realize कि धर्म जी क्यों रातों रात आते थे और चले जाते थे. I'm doing the same. तो धर्म जी ने मुझे एक दिन, हम लोग कनाडा में एक शो कर रहे थे और मैं होस्ट कर रही थी, और धर्म जी को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. एंड आई अनाउंस्ड हिज अवार्ड and he was leaving, and I was about to make the next announcement, and suddenly everyone in the audience started clapping. I said, ऐसा तो मैंने अभी कुछ बोला भी नहीं कि ताली बजी. तो देखा पीछे से धर्म जी आए और उन्होंने ऐसे मुझे जप्फी मारी, और उन्होंने बोला इतने हज़ारों ऑडियंस के बीच में कि मैं एक कन्फेशन करना चाहता हूँ कि जब ये बच्ची आई थी तो ये मेरे पिंड की है, तो मैं चाहता था कि क्यों आ रही है फिल्मों में, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि इसने मेरी बात नहीं सुनी. और मतलब इससे बड़ी बात क्या होगी. और मेरी माँ बैठी थी जो उनको अपना भाई ही बुलाती थी, एंड शी वॉज सो प्राउड एंड शी वॉज क्राइंग ओवर देयर, सिटिंग देयर. आई थिंक द सेम हैपेंड विद माई मामा ऑल्सो, कि थोड़ा वक्त लग जाता है समझने में कि ये शौकिया ही आ गई है ग्लैमर के लिए, कि ये एक्चुअली पैशनेट है. And gradually with years, with my work, with my performances, I think they all realized. और फिर मेरे मामा एक ad बना रहे थे, and he called my mother. He said, दिव्या मेरा ad करेगी,
मेरी माँ तो ऐसे कूदी एंड शी सेड तू जो भी कर रही है तू सब छोड़ दे, तू ये ऐड तो पक्का करेगी. आई सेड मम वेट चिल. शी सेज नो, यू डोंट नो हाउ मच इट मीन्स टू मी दैट यू एंड ही वर्क टुगेदर. I said okay, we're doing it, and I actually worked with him. These are the moments of validation, right? And these are the moments of making you feel proud of your journey. Absolutely. I think जब आप अपना रास्ता खुद तय करते हैं, झाड़ियाँ काट काट के एक पगडंडी अपनी खुद की बनाते हैं और फिर पीछे के लोग कहते हैं यही वाला रास्ता अच्छा है, तो अच्छा लगता है. बिल्कुल. But you have played a lead in Veer Gati which didn't work. Did that upset you? It was opposite Salman. See, I have played leads in all of them. Yeah. It's like I was opposite Sunil Shetty in my second film. Yes. I was the lead with lots of heroes, but I was doing just that song and dance number and that's it. और फिर मुझे कुछ और करना था. फिर मुझे ट्रेन टू पाकिस्तान मिली जो कुछ और था. फिर मुझे शहीद मोहब्बत बूटा सिंह मिली गुरदास मान के साथ जो कुछ और था. फिर मैंने अपने आप ही रास्ता थोड़ा बदल दिया. तो लोग कंफ्यूज हो गए कि अब मैं ऋतुपर्णव घोष की लास्ट ईयर कर रही हूँ, श्याम बेनेगल की ये फिल्म कर रही हूँ और फिर राकेश मेहरा की दिल्ली 6 कर रही हूँ. तो ये क्या कर रही है, मतलब ये कौन से रोल्स हैं, ये रोल्स तो हमारी लिस्ट में आते नहीं. व्हाट इज़ दिस. बट आई वॉज एन्जॉइंग बीइंग अ रेबेल. स्वीट सा रेबेल थी तो किसी को बुरा भी नहीं लगता था कि ये कोई झंडे लेके नहीं आए. स्वीट सी अपने शौक पूरे कर रही है. एंड आई एन्जॉयड बोथ द वर्ल्ड्स इक्वली एज मच. जितना मुझे श्याम बेनेगल की शूट पे मज़ा आ रहा था उतना ही मुझे राकेश मेहरा की शूट पे मज़ा आ रहा था. और इट वाज नाइस टू. अब जैसे मैंने दिल्ली 6 जब की तो मैं बिल्कुल एक टिपिकल पंजाबन थी जहाँ मैं सबको हाँ जी जी, तो सब बड़े अटपटा फील करते थे कि तो जी करती रहती, मतलब आई वॉज लाइक दैट. रोल मिला जलेबी का जिसमें गाली गलौज, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग एंड बिंदास. तो मैं तो बड़ी हैरान हुई थी कि राकेश मेहरा ने मुझे क्यों कास्ट कर लिया. एंड देन दे वर ऑल मैन अराउंड मी. देयर वाज ओम जी, पवन मल्होत्रा, ऋषि कपूर, अभिषेक, राकेश मेहरा, प्रेम चोपड़ा, एवरीवन. एंड दे न्यू कि ये घबराई हुई है, मतलब कि वट एवर. सो दे सेड हम आ रहे हैं तेरे शूट पे तुझे देखने. मैं कर लियो, चलो यही रह गया था बस करना. फुल 1 शॉट 1 मोनोलॉग. वहीदा जी बैठी हैं, ऋषि कपूर बैठे हैं, ओमपुरी बैठे हैं और विजय राज मुझे डंडा मारने वाले हैं और मुझे तरह तरह की गालियाँ देनी है. अब मुझे मतलब दिव्या को गाली देने में ही प्रॉब्लम है, तो जी वाली थी. तो मैं कहा ये इनहिबिशन कैसे छोड़ते हैं यार. राकेश मेहरा आए साइड पे, मैंने कहा कुछ तो बता दो करना कैसे. और राकेश मेहरा हैज़ अ वेरी सटल वे ऑफ डायरेक्टिंग यू. यू वोंट इवन गेट टू नो ही टोल्ड यू समथिंग मैजिकल. आए और बोले बस ऐसा करना है कि दिव्या को हटा देना है और जलेबी को आने देना है. तो वो बात जो थी वो अटक गई. जब ही टोल्ड मी दिस, आई सेड गिव मी 2 seconds. वो क्या हुआ मुझे पता नहीं, जो मैंने गालियां दी उस दिन, आहा हा हा, वहाँ जो सबने खड़े होके तालियां बजाई कि ये कौन निकला भाई. इट वाज लवली. बट आई थिंक यहाँ पे जो इंडस्ट्री है आपके साथ कैसे खड़ी रहती है, कैसे इनकरेज करती है, हम ये चीज़ों की बात ही नहीं करते. बट दिस फॉर मी by far my nicest experiences of shooting has been Delhi 6. Yeah. Even your role in Baag Milkha Bhag, oh my God, what an amazing. I wasn't doing it because I had a huge crush on Farhan that time. I said, make you man Banuski. So then Rakesh said, but tum actor ho na, you're a professional. I said, yeah, but you know, he said, tum story suno baith ke, it's a brother-sister story. तो ऐसे ले बताओ. तो स्टोरी सुनी एंड आई थिंक राकेश ऑलवेज वेरी सेंसिटिव माइंड. एंड पंजाब जब मैं पहुंची तो बोले सेट पे आ जा. फिरोजपुर में हम शूट, मतलब मेरी शूट नहीं थी, अगले दिन थी शूट. सो आई जस्ट वेंट. आई सेड कि पता नहीं क्यों बुला लिया, शूटिंग चल रही है, मैं क्या करूँगी यहाँ पे. तो ही सेड कम, आई वांट यू टू मीट समवन. एक बैक करके एक सरदार जी खड़े थे एंड ही टैप्ड ऑन हिज बैक and he said, meet your brother. He turned. I just kept looking at him and said, this is not Farhan at all. This is Milkha. और तुम क्या लगी पड़ी हो अपने ये लेके कि नहीं करूँगी, तुम इसरी बनो. तो फिर उधर इसरी कहाँ से आई with the magic of the costume and everything. It was amazing. That very famous scene that we did, जिसमें वो बूंदे कान के निकाल के वो करते हैं, उस सीन का कोई बिगिनिंग और एंड था नहीं. और था नहीं मतलब था, बट राकेश जी वांटेड कि तुम अपने आप सोचो कुछ. और मैं जीन्स वीन्स पहन के मैं बर्तन धोने को बैठ गई.
कुछ सही नहीं हो रहा था. तो he said, Divya, do you mind getting into your costume? So I said, no, it's okay. He says, no, get into your costume. अब मैं सलवार कमीज पहन के आई, सर पे दुपट्टा ऐसे करके पहना, चप्पल वो जो मैंने जूते पहने हुए थे कैच उतार दिए, नंगे पैर बैठी हूँ. बॉडी लैंग्वेज बदल गई, जिस तरह से बर्तन धो रही थी बदल गया. एंड आई थिंक ही नोज व्हाट काइंड ऑफ एन एक्टर आई एम. आई कांट डू टू मच मेथड बट ही लीव्स मी विद द मोमेंट एंड आई बिकम दैट. सो वो बदल गया. एंड देन ही सेड, नाउ फिगर द एंड योरसेल्फ. सो जब फरहान को हग किया मैंने, एंड अंदर से दिमाग में चल रहा है इतना क्लीशे एंड करेगी इतने सुंदर सीन का, ये दिमाग में चल रहा है वो कुछ सेकंड्स में. और देन आई सडनली रिमेंबर्ड कि हमने तो शूट किया था जहाँ पर छोटे मिल्खा को पापा ने सल्यूट मारा था. तो आई जस्ट सडनली लेफ्ट दैट एम्ब्रेस एंड आई सल्यूटेड हिम. आई वॉज शॉक्ड, हाउ डिड आई डू दिस, हाउ डिड आई रिमेंबर दिस. एवरीवन एल्स वाज शॉक्ड कि ये क्या हुआ. तो ये तो हमने सोचा नहीं था. और राकेश मेहरा ने कट नहीं बोला, डीओपी ने छोड़ा कैमरा, हम लोग सब ग्रुप हग करके इतना रोए कि कुछ फिल्में जो होती हैं और कुछ मोमेंट्स उन फिल्मों में जो होते हैं वो बड़े खास हो जाते हैं और आपको पता नहीं होता कि कैसे हो गए. Amazing. Feminism is a word that we use very often recently, but does it unconsciously get imbibed in you when you are brought up by a single mother? Do you give that credit to her? Because I think you are a feminist. I have a different definition of feminism. For me, what really matters is you treat me as an equal. मैं तुमसे ऊपर या तुम मुझसे ऊपर वाली स्टोरी मुझे मत सुनाओ. ना मैं तुमसे ऊपर ना तुम मुझसे ऊपर, हम बराबर हैं. You know, I've never actually said it. There have been so many relationships in my life that I have just left because they had a say in my career. कि तुम ये करो यार, ये मत करो यार. क्यों भाई? मैं उस मामले में अगर आप कहें कि उसे आप फेमिनिज्म कहते हो, नहीं मैं नहीं कहती. मुझे लगता है कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे एक हक होना चाहिए कि मैं ज़िंदगी जैसे लीड करना चाहती हूँ करूँ. ना मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ ना मैं आपको रोक रही हूँ, बट आप भी मुझे ना रोकें. हम एक दूसरे को नर्चर करें. आई थिंक वो सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है. बिल्कुल. सो आई थिंक दैट इज़ फ्रीडम फॉर मी. that I like to choose in my life and I think एक ज़िंदगी है, उसमें मैं किसी दूसरे को क्यों अलाउ करूँ कि तू बता यार मैं क्या करूँ. I agree. लेकिन कंपेनियन की कमी कभी कभी महसूस होती है. I have lots of companions as such and it's not like I have dated men and I've had relationships. It's I would say fortunate or unfortunate that it didn't work. But I think I'm happy. I'm very happy that I have seen life. And I have lots of friends. And आजकल मैं एक नया प्यार देखा है जो मेरे नीस और नेफ्यू के बीच में है, जिनमें मैं सबसे छोटा बच्चा मैं हूँ और वो मुझे ट्रीट भी वैसे ही करते हैं, पता नहीं क्यों, कि यू सिट डाउन, यू डोंट नो हाउ टू डू इट, आई विल टीच यू. इट्स लाइक ओके यू टीच मी. सो बाकी मम्मी मम्मी हैं, पापा पापा हैं, लेकिन जो बुई है वो बच्ची है, उसको कुछ नहीं आता है, उसको वो सिखाते हैं. सो आई लव दैट फेज इन माई लाइफ. आई थिंक कंपेनियनशिप, yes, the one you're talking about, I would love to have one, but I think I've reached a place where nothing matters to me more than my peace of mind and my work. और अगर वो कुछ नर्चर करती हुई एक खूबसूरत सा रिश्ता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा. You've had a glorious 26 years, Divya, like you mentioned. आगे क्या चाहती? What do you want to see do next? Because you've done so much, varied roles. Does it satisfy you as an actor now, or there is still a lot of hunger that you want to put it out there? There's a lot of hunger, Avinash. There's a lot. I think when you cease to dream, you cease to want things, you cease to live. Yeah. फिर वो एक आपकी शक्ल पे ही दिखने लग जाता है. I've done it all. I still go very nervous on the sets. पहला दिन मेरा बहुत नर्वस होता है, मेरे सामने ही कोई नहीं आता कि ये घबराई हुई डांट वांट के भगा दूँगी. क्योंकि जब तक वो रोल नहीं मिलता मेरे को कि बैठ गया रोल, अभी दिव्या इधर है और रोल इधर है, वो एक दिन लग जाता है उसको बिठाने में. एंड वंस इट्स देयर देन आई एम फाइन. आई एम लाइक अ चाइल्ड दैट वे. बट येस, आई लव टू बी नर्वस. I love to find a role that really makes me nervous, and I'm so happy I'm doing a few of them
which really put me on my toes, and my staff says like 1 kilometer away कि पहले 2 दिन दिखना मत इसको ये घबराई होती है, इसका टचअप भी दूर से ही करके चले जाओ, इसको छोड़ दो. तो but I am liking that, and I don't think I would be satisfied, but yes, I am grateful कि ज़िंदगी उस तरह से पैन आउट हुई जिस तरह से इवेंचुअली, वो मैं अंडरलाइन करूँगी, मैं चाहती थी. वो जैसा आपने कहा कि लेट हुआ, जी लेट हुआ, पर हुआ. और आई एम प्राउड ऑफ दिस जर्नी बिकॉज ये जर्नी मेरी खुद की है. और अच्छा लगता है कि जो बहुत कमर्शियल लोग, जो मैं जब आई थी गुमी हुई फील करती थी, आज उनसे मिलती हूँ एंड दे लॉड इट. सो इट फील्स नाइस दैट दिस इज़ ख्वाब पूरे होते हैं, उसको आप जो कहते हैं कि शिद्दत से करते रहें तो होते हैं पूरे. सो आई एम ग्लैड आई बिलोंग टू अ वर्ल्ड आई वांटेड टू बिलोंग टू. And yes, miles to go before I sleep. And I would like to end right from you begin. You know, you said you used to daydream, and of course, daydream is a way to manifest as well. And I'm sure you've manifested this lovely 26 years journey that you have lived. And I wish it goes on for another 26 years and even more. Thank you for this conversation. Thank you for opening up. Thank you, Avinash. Pleasure, absolutely. Hi, this is Divya Datta. If you like this video, please like, share, and subscribe to Pink Villa.